آداب عرض ہے MCN اردو نیوز میں آپ کا خیر مقدم۔ ناظرین، میں ہوں نوید انجم۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھانے سے پہلے آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں آج کی خاص خبروں پر۔ عوام کے مسائل وقت پر حل کر کے ریونیو محکمے کا کیا جائے نام روشن۔ محصول ہفتے کی اختتامی تقریب میں علاقائی کمشنر پاپڑکر نے دیا محصول ملازمین کو مشورہ، دیگر اعلیٰ افسران نے بھی کی حاضرین کی رہنمائی۔ AMC انتظامیہ کی جانب سے گزشتہ 2 ماہ سے شہر میں جاری انہدامی کارروائی پر لگائی جائے فوری روک، متاثرین کی بازآباد کاری کر کے انہیں ادا کیا جائے معاوضہ۔ AMC کے خلاف شہر میں نکالا گیا جن آکروش مورچہ، ڈویژنل کمشنریٹ کو پیش کیا گیا مطالباتی میمورنڈم۔ کیش وقف فنڈ سے بیواؤں اور PhD کے ضرورت مند طلباء کو وظائف دینے کا وقف بورڈ نے کیا اعلان۔ لاؤڈ اسپیکر کی اجازت کے لیے مساجد و درگاہوں کو وقف بورڈ جاری کرے گا NOCs، کہا چیئرمین سمیر قاضی نے۔ وقف بورڈ کے بوگس کاروبار پر بھی روک لگانے کا کیا دعویٰ۔ اور NCP شرد پوار گروپ کے شہر صدر خواجہ شرف الدین نے پارٹی کے 9 نامزد ریاستی صدر کے اعزاز میں رکھی تقریب۔ مہمانوں کے ہاتھوں بے روزگار افراد میں تقسیم کی گئی ہاتھ گاڑیاں اور کاروبار کے لیے سامان۔ شہر کے ہونہار طلباء کا بھی کیا گیا استقبال۔ اب خبریں تفصیل سے۔ آج MGM یونیورسٹی کے رکمنی ہال میں منعقدہ محصول ویک کا اختتامی پروگرام عمل میں آیا، جس میں ڈویژنل کمشنر جتیندر پاپڑکر نے ملازمین و افسران کی موجودگی میں خطاب کرتے ہوئے ان کی خدمات کو سراہا اور عوام کو بہتر خدمات فراہم کروانے کے لیے اپنے آپ کو اپڈیٹ رکھنے سے متعلق افسران کو ضروری ہدایات دیں۔ ضلع کلکٹر دلیپ سوامی نے کہا کہ دفتری فرائض کے ساتھ اپنے علم کو تازہ رکھنا ضروری ہے تاکہ بہتر خدمات فراہم کی جا سکیں۔ اس موقع پر MGM یونیورسٹی کے رکمنی ہال میں اختتامی تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ اس پروگرام میں ڈویژنل کمشنر جتیندر پاپڑکر، وائس چانسلر ڈاکٹر ولاس سبکاڑ، ضلع کلکٹر دلیپ سوامی، سڈکو کے چیف ایڈمنسٹریٹو آفیسر جگدیش منیار، پولیس سپرنٹنڈنٹ ڈاکٹر وینے کمار راٹھوڑ، ایڈیشنل کلکٹر سمبھاجی راؤ اڑکنے، ڈاکٹر اروند لوکھنڈے، ریزیڈنٹ ڈپٹی کلکٹر جناردھن ودھاتے، ڈپٹی کلکٹر اور دیگر افسران و تنظیموں کے نمائندے شریک ہوئے۔ ڈاکٹر سبکاڑ نے کہا کہ ملازمت کے دوران مطالعہ اور ٹیکنالوجی کو یکجا کر کے علم کو تازہ رکھنا چاہیے۔ ضلع کلکٹر نے زور دیا کہ محکمے کی وجہ سے ملنے والی عزت کو عوامی خدمت سے بڑھایا جائے اور مثبت سوچ و صحت سے متعلق بیداری پیدا کی جائے۔ ڈویژنل کمشنر نے مصنوعی ریت پالیسی کو اہم قرار دیتے ہوئے کہا کہ سستی ریت فراہم ہونے سے مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ ترقی کی رفتار کے ساتھ خود کو ہم آہنگ کرنے اور محکمے کی ساکھ بڑھانے کی اپیل بھی کی۔ تقریب کا آغاز جناردھن ودھاتے کے ابتدائی کلمات سے ہوا۔ اس موقع پر محصول افسران و ملازمین کے ہونہار بچوں کو اعزاز سے نوازا گیا۔ اس موقع پر تمام محصول ملازمین و افسران موجود تھے۔ आपल्याकडे काय काम चाललेलं आहे, कुठे जग पुढे चाललेलं आहे आणि आपण कुठे आहोत याच्यामध्ये लक्ष ठेवा। आपल्या कामामध्ये खूप चांगल्या पद्धतीने अभ्यास करून घेऊन आपल्या टिप्पणी लिहा। आपल्या चांगल्या पद्धतीचं काम आपल्याकडनं होईल याच्यासाठी आपल्या महसूल विभागाची प्रतिमा चांगली राहील यासाठी सर्वांनी खूप प्रयत्न करा। अशा पद्धतीने खूप असं काम आपल्या पद्धतीने चांगलं व्हावं एवढीच मी आपल्या सर्वांच्याकडनं अपेक्षा व्यक्त करतो। मला कोणी शाबासकी देईल, कोणी माझं अभिनंदन करेल, माझं वाहवा करतील, मला नियतीनं निसर्गानं हे काम दिलेलं आहे, हे काम मी प्रामाणिकपणे केलं पाहिजे। हा मंत्र आणि हा संदेश आज आपण इथून घेऊन गेलो। तुम्हाला काम केल्याचा आनंद मिळेल, तुमच्या माध्यमातून 4 लोकांचं जीवन सुखकर होईल, तुमचंही नाव त्याच्यामध्ये होईल। मला समाधान पाहिजे, मला आनंद पाहिजे, म्हणून जर तुम्ही फिरलात तर तुम्हाला ते कुठल्याही बाजारामध्ये मिळणार नाही। तुम्हाला ते तुमच्या अंतरात्म्यातच मिळणार आहे आणि ते सुख, ते आनंद, ते समाधान तुम्हाला प्राप्त करायचं असेल तर तुम्हाला याच पद्धतीने काम केलं पाहिजे, याच पद्धतीने जगलं पाहिजे आणि त्यासाठी तुम्ही प्रयत्न कराल असं मी आपल्याला आवाहन करतो। ملت کو درپیش مختلف مسائل کی یکسوئی کے لیے ایک ورکشاپ 10 اگست بروز اتوار حج ہاؤس کی عمارت میں منعقد کیا جا رہا ہے۔ یہ اطلاع مسلم نمائندہ کونسل کے ذمہ داران نے آج ایک پریس کانفرنس کے ذریعے دی۔ انہوں نے صحافیوں کو بتایا کہ ان دنوں
उम्मत के सामने कई मसाइल हैं जिसकी वजह से बंदगान तौहीद तशवीश और तज़ब्ज़ुब का शिकार हैं कि इन मसाइल का सामना किस तरह से किया जाए। लिहाजा हालात की संगीनी को देखते हुए उम्मत मुस्लिमा के इन सुलगते मसाइल पर कानूनी तौर पर रहनुमाई की गर्ज से ये वर्कशॉप मुनक़्क़िद किया जा रहा है, जिसमें वक्फ़ इमलाक की शरई हैसियत, वक्फ़ तरमीमी कानून 2025, गौवंश हत्या कानून, शहर का तरक्याती मंसूबा और हमारे मजहबी मकामात का तहफ़्फ़ुज़, गुंठेवारी कानून, अवामी तहफ़्फ़ुज़ कायदा 2015, उसके मुज़मिरात और उसका सद्देबाब जैसे मौज़ूआत पर माहिरीन कानून और उलमा किराम रहनुमाई फरमाएंगे। लिहाजा नुमाइंदा कौंसिल के सदर ज़ियाउद्दीन सिद्दीकी ने बंदगान तौहीद और बिलखुसूस उलमा व अइम्मा मसाजिद कमेटी के ज़िम्मेदारान और मुख्तलिफ मिली व समाजी तंजीमों के ज़िम्मेदारान से शिरकत की अपील की है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये इसलिए बुलाई गई थी कि 10 तारीख को इतवार के दिन हज हाउस में एक वर्कशॉप हमने रखा है और इस वर्कशॉप में मुख्तलिफ जो इश्यूज़ है उसको हम पिकअप कर रहे हैं। मसलन वक्फ एक्ट है, वक्फ जो अमेंडमेंट एक्ट है, उसके साथ जो महाराष्ट्र पब्लिक सेफ्टी एक्ट है, इसी के साथ जो है गौवंश का एक्ट जो बनाया गया वो है, एनिमल प्रोटेक्शन एक्ट है, उसके बाद जो डीपी प्लान के लिए जो एक्ट बनाया गया वो है, और लाउड स्पीकर के मामले में जो गाइडलाइंस गवर्नमेंट की है, इन सब के ऊपर हम चर्चा करेंगे और इसमें क्या सॉल्यूशन निकल सकता है उस पर बात करेंगे। कोई अगर इंडिविजुअल केस है तो वो सवाल करके पूछ भी सकता है कि इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे इन इश्यूज़ को। तो ये तमाम चीज़ों को लेकर सुबह 10, साढ़े 10 से लेकर 5:30 तक का ये वर्कशॉप होगा। उसमें 2 वे कम्युनिकेशन है, मतलब क्वेश्चन आंसर भी हमने रखा है। इसका हम चाहते हैं कि कोई ना कोई समाधान और कोई सलूशन निकले, इस हवाले से इसको बुलाया। इसमें सबसे नागपुर से शेख अब्दुल रऊफ साहब, ये एक्स CEO है महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड के, वो आ रहे हैं, वो गाइड करेंगे। और जैसे इन्होंने बताया कि सांघिकर गौवंश के ऊपर बोलेंगे, अभय टकसाल साहब जो है पब्लिक सेफ्टी के एक्ट के ऊपर बोलेंगे, और इसी तरह लाउड स्पीकर इशू को एडवोकेट सलीम खान डील करेंगे, और डीपी प्लान के ऊपर महबूब खान साहब जो एक्स सेक्रेटरी है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के, वो डील करेंगे। इस तरह ये अथॉरिटी से हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये क्या इसका सोल्यूशन निकल सकता है क्या, और जितना पॉसिबल सोल्यूशन है उस पर 1-to-1 बात करके हम कोशिश करेंगे। ज़िले के घाटी अस्पताल में बढ़ती हुई भीड़, नाकाफ़ी सहूलियात और डॉक्टरों की कमी जैसे मामलात के पस मंज़र में आज अपोजिशन लीडर अंबादास दानवे ने अचानक अस्पताल का दौरा किया। उन्होंने मुख्तलिफ शोबों का मुआयना किया और मरीज़ों और लवाहिकीन से गुफ्तगू भी की। ज़िले के राब्ता वज़ीर बराए समाजी इंसाफ संजय सिरसाट ने ज़िलई मनसूबा बंदी कमेटी की मीटिंग में ऐलान किया था कि MRI और CT स्कैन की सहूलत मुफ्त फराहम की जाएगी। इस मौके पर दानवे ने यह भी जानने की कोशिश की कि आया ये स्कीम नाफिज की गई है या नहीं, लेकिन बताया गया है कि ये मनसूबा अभी तक सिर्फ ऐलान तक ही महदूद है। इस मौके पर प्रिंसिपल डॉक्टर शिवाजी सुक्रे, पार्टी शहर सदर बाला साहब ठाकरे, शहर के मुंतजिम सचिन तायडे, नानाजी काकाटे, नायब शहर सदर राजेंद्र दानवे, प्रमोद ठेंगरे, खवातीन महाज की राब्ता मुंतजिम सीता अवलवार, आशा दातार, अरुणा भाटी और विजया पवार भी मौजूद थे। ताल्लुका बदनापुर के चिखली गांव में सर्वे नंबर 452 और 453 की आगले बिरादरान की ज़मीन को आपस में फ़रोख्त करने का इल्ज़ाम लगाते हुए कब्ज़ा करने वालों से हिफाजत फराहम करने की दरख्वास्त पुलिस सुपरिटेंडेंट अजय कुमार बंसल से की गई। ताल्लुका बदनापुर के चिखली में सर्वे नंबर 452 और 453 की बबलू आगले और कड़ूबा आगले की ज़मीन को मंडल ऑफिसर ने आपस में फ़रोख्त करने का इल्ज़ाम लगाया है। ख़ास बात यह है कि इस ज़मीन पर कब्ज़ा करने के लिए रशीनाथ जगताप और मालोसरे नामी अफराद गुंडों के ज़रिए जानी नुकसान का ख़तरा पैदा कर रहे हैं। उनके ज़रिए कब्ज़ा करने की कोशिश की जा रही है, जिसकी शिकायत दर्ज कराई गई है। इसलिए उनसे तहफ़्फ़ुज़ देने की मांग पुलिस सुपरिटेंडेंट अजय कुमार बंसल से की गई है। किसानों ने पुलिस सुपरिटेंडेंट से मुलाकात करके सुनील डोलसे की क़ियादत में ये शिकायत पेश की है। आम्ही आज माननीय पोलीस अधीक्षक साहेब बंसल यांना निवेदन दिले आहे की बदनापूर तालुक्यातील चिखली येथील गट क्रमांक 452 आणि 453 हा गेल्या 40 वर्षापासून आणेवारीनं असताना आमचे बाबू आगळे आणि विठोबा आगळे कडोबा आगळे यांच्या परस्पर ती मंडळाधिकारी बीबी लाने
यांनी संगनमत करून परस्पर विकली आणि त्या जमिनीवर आता राजूर येथील ऋषीनाथ जगताप आणि मालुसरे हे 2 ताबाकरांचा गुंडामार्फत प्रयत्न करीत आहे आणि ते जे गुंड चोरी चपाटी अवैध धंदेवाले यांना सुपारी देऊन आमच्या जीवितास त्यामुळे धोका निर्माण होणार आहे। त्यामुळे यांच्यावर कारवाई करण्यासाठी आम्ही माननीय बन्सल साहेबांना निवेदन दिले आहे आणि 15 ऑगस्ट रोजी आम्ही धरणे आंदोलन जिल्हाधिकारी साहेब या संदर्भात करणार आहोत। किती एकर शेती आहे ती एक 31 गुंठे है, एक 16 गुंठे है। म्यूनसिपल इंतज़ामिया की जानिब से गुज़िश्ता 2 माह से शहर में जारी इन्हदामी कार्रवाई के ख़िलाफ़ आज मुतासरीन ने शहर में जन आक्रोश मोर्चा निकाला और इलाकाई कमिश्नर से इस पर फौरी रोक लगाने का मुतालबा किया। शहर में तजावुज़ात हटाने की कार्रवाई के ख़िलाफ़ आज प्रॉपर्टी होल्डर्स एक जगह जमा हुए और ज़ोरदार मार्च निकाला। म्यूनसिपल इंतज़ामिया की नाइंसाफ़ी पर मबनी कार्रवाई के ख़िलाफ़ शहरियान ने सड़कों पर उतर कर शदीद एहतजाज किया। ये मार्च क्रांति चौक से निकलकर शहर के डिवीज़नल कमिश्नर के दफ्तर तक गया। इस मार्च में प्रॉपर्टी होल्डर्स, रेडी वाले, छोटे ताजिर और बड़ी तादाद में ख़वातीन शरीक हुईं। मुज़ाहिरीन के हाथों में एहतजाजी पोस्टर और बैनर्स थे और नारे लगाए जा रहे थे कि जानिबदाराना तजावुज़ात हटाने की कार्रवाई बंद करो, हमें हक़ की जगह दो। इस मौके पर मुज़ाहिरीन ने इंतज़ामिया पर इम्तियाज़ी सलूक करने का इल्ज़ाम भी लगाया। इत्मीनान बख्श हल न निकलने की सूरत में आइंदा तहरीक को मज़ीद सख्त करने की भी वार्निंग दी गई। मार्च पुरअमन तौर पर मुकम्मल हुआ और अब देखना यह है कि इस पर इंतज़ामिया का क्या रद्द-ए-अमल आता है। आमचं या ठिकाणी जवळजवळ 15 दिवसापासून हा महामोर्चाचं आयोजन होतं। प्रशासनाला माहित होतं की हा महामोर्चा विभागीय आयुक्त कार्यालयावर धडकणार आहे, परंतु येथील जे काही नवीन विभागीय आयुक्त आलेले आहेत यांनी आम्हाला वेळ दिलेला नाही। आम्ही येण्याच्या अगोदरच दुपारी या ठिकाणाहून निघून गेलेले आहे, परंतु ते नसल्यामुळे येथील जे ॲडिशनल विभागीय आयुक्त होते गव्हाणे साहेब त्यांची आमची भेट झाली। आम्ही त्यांना पूर्ण मुद्दे निवेदनातले जे होते विविध भागातले ते आम्ही त्यांना पटवून दिलेले आहे आणि त्यांना सांगितलेलं आहे की तुम्ही कारवाई तात्काळ थांबवायला लावा। जी श्रीकांत साहेबाची जी काही हुकुमशाही या शहरावर लादलेली आहे ती थांबवण्यात यावी, नसता आम्ही रस्त्यावर उतरून तीव्र आंदोलन आणि त्यांच्या घरात घुसल्याशिवाय आम्ही राहणार नाही। खरं आहे ना बाबा, ते कॅम्ब्रिज पर्यंतची कारवाई का नाही झाली? श्रीमंतांना वाचवण्यासाठी नाही झाली। कांचनवाडीला तुम्ही जी कारवाई करायला लागलात तो वक्फ बोर्डात तुम्ही रस्ता वळवलाय, कारण तिथल्या श्रीमंत घरांचे लोकांचे घर जाणार आहेत। तर या कारवाईमध्ये पैसे देवाणघेवाण करून श्रीमंत लोकांना वाचवण्यासाठी गरिबांचे घर उद्ध्वस्त केलेले आहेत। 100% आयुक्तांनी आणि ते संतोष वावळे या दोघांनी श्रीमंतांच्या घराला वेगळा न्याय आणि गरिबांच्या घराला वेगळा न्याय। महानगरपालिकेने पक्षपातीपणा केला, 100% पक्षपातीपणा केलाय, हुकुमशाही केली, दादागिरी केली आणि त्याच्यामध्ये उलाढाली, आर्थिक उलाढाली करून कारवाई केलेली। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को कॉन्ट्रैक्ट पर लेबर सप्लाई करने वाली महाराणा सिक्योरिटीज़ एजेंसी के कुछ मुलाजमीन अशोका एजेंसी की तरफ शिफ्ट किए गए। म्यूनसिपल इंतज़ामिया ने महाराणा कंपनी, अशोका और गैलेक्सी इन 3 एजेंसियों के ज़रिए कॉन्ट्रैक्ट पर मबनी मुलाजिमीन लिए हैं। इसमें महाराणा कंपनी के 1800 से 2000 मुलाजिमीन मुकर्रर किए गए हैं, जबकि गैलेक्सी के ज़रिए कंप्यूटर ऑपरेटर और अशोक एजेंसी की मारिफत 150 साबिक फ़ौजियों का तकर्रुर किया गया। कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिमीन को हर माह बतौर तनख्वाह एजेंसीज़ के ज़रिए ही पैसे दिए जाते थे। दरमियान में कमिश्नर जी श्रीकांत के कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिमीन से गुफ्तगू करने पर मालूम हुआ कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जितनी रकम बतौर तनख्वाह अदा करती है उसकी आधी रकम ही मुलाजिमीन को बतौर तनख्वाह दी जाती थी, जिसके बाद की तहक़ीक़ात में वाज़ेह हुआ कि कॉरपोरेशन इंतज़ामिया की जानिब से एजेंसीज़ को ज़्यादा पैसा दिया गया। जब ऐसी खबर सामने आई, लिहाजा महाराणा एजेंसी के पास से 18 करोड़ और गैलेक्सी के पास से 1 करोड़ रुपये वसूल करने का हुक्म इंतज़ामिया की जानिब से दिया गया। इसके बाद गैलेक्सी एजेंसी ने 3 मराहिल में ये रकम अदा करने का वादा किया, लेकिन महाराणा एजेंसी की तरफ से 18 करोड़ रुपये कॉरपोरेशन को वापस करने के मुआहदे पर किसी किस्म का फैसला नहीं लिया गया। अब महाराणा एजेंसी कॉरपोरेशन से अपना बोरिया बिस्तर लपेट रही है और इस एजेंसी के मुलाजिमीन अशोक एजेंसी की तरफ शिफ्ट किए गए हैं, ऐसी इत्तला ज़राए से मिली है। नागपुर में बोगस शालार्थ मामला मंजर आम पर आया है, जिसके तहत पुलिस महकमे की जानिब से गेहूं के साथ घुन भी पिसे जा रहे हैं और बेबुनियाद इल्ज़ामात पर शोबे तालीम के बेगुनाह अफराद की गिरफ्तारियां की जा रही हैं, जिसके ख़िलाफ़ एजुकेशन अफसरान ने 8 अगस्त से इज्तिमाई रुखसत एहतजाज शुरू किया है। वाज़ेह हो कि इस मामले में
بعض बेकसूर अफसरान और मुलाजिमीन को भी तहकीकात के नाम पर मुकदमात में घसीटा जा रहा है, जिससे महकमा तालीम की बदनामी और अमले में खौफ व दहशत का माहौल पैदा हो गया है और दफ्तरी काम मुतासिर हो रहा है। ये सिलसिला रुकना चाहिए। किसी भी जाली मामले में मुकर्ररा मुद्दत में सीनियर अफसरान से इंक्वायरी की जाए और इस दौरान चार्ज वापस लेकर तनख्वाह रोकी जाए और कसूरवार साबित होने पर मुअत्तली व मुकदमा हो। बेतहाशा गिरफ्तारियों के खिलाफ अफसरान व मुलाजिमीन ने 8 अगस्त से रियासतगीर गैर मुअय्यना मुद्दत इज्तिमाई रुखसत तहरीक शुरू की, जिसे तालीमी इदारों के सरबराहान, हेडमास्टर्स, असातिज़ा और गैर तदरीसी अमले ने हिमायत दी और डिप्टी कमिश्नर अनंत गोवाने को मेमोरेंडम पेश किया। इस मौके पर मुतादिद तालीमी रहनुमा और अफसरान मौजूद थे। PhD करने वाले ज़रूरतमंद तलबा को और बेवाओं को 50,000 रुपये की माली इमदाद कैश वक्फ फंड से की जाएगी। ये ऐलान महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड के चेयरमैन समीर काजी ने गुज़िश्ता शाम बुलाई गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया। उन्होंने बताया कि अब तक सिर्फ इमलाक ही वक्फ की जाती रही हैं, मगर अब खैरख्वाह हजरात नकद रकम भी वक्फ कर सकेंगे, जिसके लिए वक्फ बोर्ड इंतज़ामिया ने कैश वक्फ पॉलिसी शुरू की है। चूँकि ये पॉलिसी नहीं है, इसलिए इंतज़ामिया को कैश वक्फ अकाउंट शुरू करने में दुश्वारियों का सामना करना पड़ा, मगर अब ये अकाउंट शुरू हो चुका है और इस नकद वक्फ फंड से ज़रूरतमंद अफराद को फ़िलहाल 1 करोड़ रुपयों तक वज़ाइफ दिए जा सकेंगे, मगर मुस्तकबिल में हम इससे कहीं ज़्यादा ज़रूरतमंदों की ज़रूरियात पूरी कर पाएंगे। उन्होंने मज़ीद कहा कि चाहे वो वक्फ बोर्ड पर रहें या न रहें, मगर उन्होंने और मौजूदा अराकीन ने यहाँ के कामकाज में शफाफियत लाने की गर्ज से मंत्रालय के तर्ज पर कामकाज करने और फाइलें मूव करने से मुतालिक पॉलिसी बनाई है, जिससे अब बोगस कामों पर रोक लग जाएगी और मुस्तकबिल में यहाँ कोई भी काम बोगस नहीं हो पाएगा। समीर काजी के मुताबिक इन दिनों सौती आलूदगी पर काबू पाने की गर्ज से फाजिल अदालत के हुक्म पर मजहबी इबादत गाहों में लाउड स्पीकर के इस्तेमाल का मामला गर्म है। लाउड स्पीकर के इस्तेमाल के लिए मसाजिद को वक्फ बोर्ड इंतज़ामिया NOC जारी करेगा, जिसके बाद उन्हें पुलिस डिपार्टमेंट से इजाज़त हासिल करने में आसानी होगी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वक्फ बोर्ड के दीगर अराकीन AU पठान, इफ्तिखार हाशमी, CEO जुनैद सैयद और स्पेशल एग्जीक्यूटिव ऑफिसर खुसरो खान भी मौजूद थे। और जैसे कि रजिस्ट्रेशन के जो काम हमारे पास होते नहीं थे 5-5 साल तक, वो अभी हम 2 महीने 3 महीने के टाइम बाउंड में करके दे रहे हैं। ये सारी सिस्टम हम बना के जा रहे हैं। जो अभी हमारे शाहिद भाई ने बोला ना कि कोई भी बोगस NOC ला रहा है, वो अभी हम नहीं भी रहेंगे तो इसके बाद नहीं होगा, क्योंकि जो सिस्टम बनी है कि डिस्ट्रिक्ट वक्फ ऑफिस में फाइल बनेगी, उसमें सारे एविडेंस लगेंगे, उसका रिपोर्ट बनेगा, उसके बाद हेड ऑफिस आएगा, हेड ऑफिस में भी डेस्क है हमारा, ये सारे प्रोसीजर में बोगसगिरी नहीं होती। तो इसके लिए हमने मंत्रालय वाला सिस्टम हमारे वक्फ बोर्ड में लाया है। तो आने वाले दिनों में जो है, तो चाहे कोई भी अध्यक्ष हो, बोगसगिरी नहीं होगी, इतना मैं कहता हुआ। लिमिट नहीं होती है कैश वक्फ को। अभी इसका एक्चुअली क्या है, जिस तरीके से अवेयरनेस होना चाहिए नहीं हुआ, नहीं तो मैं बोलता हूँ कि इतना कैश वक्फ आएगा, कोई भी प्रोजेक्ट करना चाहे तो करे। लगभग हमारे पास अभी 6 से 7 महीने हुए है। अकाउंट खोलने में कुछ दिक्कत आ रही थी, पहली बार खुला, इसलिए हमको थोड़ा सा टाइम लगा उसके अंदर। इस टाइप का अकाउंट खुला ही नहीं था ना। तो अभी हमारे पास जो है कैश वक्फ के लिए लगभग अभी जो मैंने प्रोजेक्ट आपको डिक्लेयर किया, क्योंकि प्रैक्टिकल में हमारा वर्क उसके ऊपर 3-4 महीने से ही शुरू हुआ, क्योंकि वो पहली बार हो रहा है, तो उसमें आपको सारी बारीकियां देखना पड़ी, उसको मैनेज कैसा करेंगे, उसके लिए ट्रस्ट बनाया जाएगा वक्फ बोर्ड के अंडर में। वो कानूनी चीजें फॉलो करने में हमारा समय थोड़ा उसमें ज्यादा गया। तो अंदाजा हमारे पास आज की डेट में जितना मैंने अभी डिक्लेयर किया, लगभग 1 करोड़ तक का कैश वक्फ तो हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। लेकिन ये जब प्रोग्राम होगा, लोगों की जब समझ में आएगी इस तरीके से काम हो रहा है, तो हमारा टारगेट बहुत बड़ा है कैश वक्फ का। देखिए, दरगाह, मस्जिद, कब्रिस्तान, खानका, इन्हीं की हिफाजत के लिए ये वक्फ बोर्ड बना है। तो हमारी जिम्मेदारी है कि उसकी हर तरीके से हिफाजत करें। लेकिन ये जो आप कह रहे लाउड स्पीकर का मामला, गृह विभाग का डिसीजन है। उन्होंने कुछ क्राइटेरिया प्रिंट किया है, उन्होंने कुछ परमिशंस लेने को कहा है। वो परमिशंस लेने के लिए वक्फ बोर्ड से अगर कोई NOC लगती है, तो हम तुरंत, हमने इस मामले में देरी ना हो इसलिए हमारे मुख्य कार्यकारी अधिकारी CO साहब को अधिकार दिए कि कोई एप्लीकेशन इस तरीके का आता है तो उसको विद इन डे चेक करके कानूनी दायरे के अंदर जो है NOC दिया जाए। अगर कोई सारी चीज़ें हैं, वो डेसिबल से उन्होंने कुछ बनाया है कि तय किया है, उसका जो पैमाना तय किया है, 1 से 3 बार अगर वो फेल करता है, फेल्योर साबित होता है, तो उसको बाद में फिर से कभी भी लाउड स्पीकर लगाने की परमिशन नहीं दी जाएगी। तो जो गलती करेगा तो उसको तो कानून के खिलाफ हम सपोर्ट नहीं करेंगे। लेकिन अगर सारा फॉलो करने के बाद भी अगर कुछ उसके ऊपर हो रहा है, तो वो हमारे पास आए,
हम सुपरवाइजर है, हम अगर उसके साथ कुछ गलत होता है हम बात करेंगे, गवर्नमेंट से भी बात करेंगे हम, लेकिन गलत नहीं होने देंगे। सफाई मुलाजमीन की ज़िंदगी और जिद्दोजहद पर मबनी फ़िल्म आता थांबाइचा नाही नामी फ़िल्म का खुसूसी शो गुज़िश्ता जुमेरात को मुनक़िद किया गया। म्यूनसिपल कमिश्नर जी श्रीकांत की हिदायत पर यह शो अभिनीत सिनेमा हाउस में मुनक़िद किया गया। फ़िल्म के ज़रिए सफाई मुलाजमीन के काम की अहमियत, उनकी तालीम और उनकी ज़िंदगी को दरपेश मसाइल व चैलेंजेस पर फिल्माई गई है। ये शो 800 सफाई मुलाजमीन को दिखाया गया है। मुलाजमीन ने फ़िल्म को अपनी ज़िंदगी से करीब तर बताया। इस मौके पर कमिश्नर जी श्रीकांत ने मुलाजमीन से खिताब करते हुए कहा कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इंतज़ामिया उनके लिए मुख्तलिफ़ किस्म की स्कीमात चला रही हैं, जिसमें 1 करोड़ रुपये की बीमा पॉलिसी और बचत गट के ज़रिए मुलाजमीन के तकर्रुरात शामिल हैं। इन स्कीमात के सबब मुलाजमीन की ज़िंदगी महफूज और बावक़ार होगी। इसी के साथ उन्होंने सफाई मुलाजमीन की खिदमात को आवाम तक पहुँचाने की ज़रूरत पर जोर दिया। इस मौके पर नंद किशोर भोपे ने कहा कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मुलाजमीन बेहतरीन काम कर रहे हैं। उनके इस्तकबाल के लिए शो का इनेकाद किया गया है। बाकी मानदा मुलाजमीन को जुमा के दिन 8 बजे ये शो दिखाया जाएगा। इस खुसूसी शो के मौके पर एडिशनल कमिश्नर संतोष वाहुले, डिप्टी कमिश्नर लक्खी चंद चौहान व दीगर अफसरान भी मौजूद थे। मुलाजमीन ने इस मौके पर इंतज़ामिया का शुक्रिया अदा किया। मजीद कहा कि ये शो उनका मजीद हौसला बढ़ाएगा। त्या ठिकाणच्या लोकांना आग्रहाने सांगायचं पण ठीक आहे, आम्ही तुमच्यासाठी साफसफाई करतो, तुम्ही फक्त टॅक्स भरत जा आणि बांधकाम परवानगी घेऊन बांधकाम करत जा, जेणेकरून शहर विकास होईल। आणि विशेष करून ज्यावेळेला हा पिक्चर कुठे दाखवायचा, मग लोक म्हटले प्रोझोन मध्ये, परंतु भरपूर कर्मचारी इथे जवळपास राहतात। मग एक अशी थिएटर ज्यावेळेला उत्सवी माचेरनं यांना विनंती केली, त्यांना सांगितलं की सर आम्ही हा पिक्चर तरी आता गेलं, परंतु तुमच्यासाठी आणि ह्या शहराच्या साफसफाई करणारे स्वच्छता साथींसाठी मी विशेष शो आणतो आणि विशेष शो परत ते पण फ्रीमध्ये आम्ही सर्व आपल्या कर्मचाऱ्यांना दाखवू, असे त्यांचा आग्रह होता। त्यांचा मी उत्सव माचरजींना मी मनापासून खूप खूप शुभेच्छांसाठी मोफत आम्ही उपलब्ध करून देऊ। आणि दुसरे बरेच लोक इच्छुक होते, आपण आजकाल आवाहन केलं तर लोक लवकर, मग नक्कीच अशा गोष्टी नुसतं पिक्चर बघून नाही, मग काय काम करावा म्हणून आम्ही टीम बोंबे साहेब असतील, पांढरे असतील आणि वावळे साहेब असतील, या सर्वांनी विचार करून आम्ही एक चांगला प्रकारचे निर्णय घेतोय। आणि तुमच्या पिक्चरमध्ये मी जास्त बाधा आणत नाही, यू एन्जॉय। आणि रविवारी सुट्टी असतो किंवा आता आम्ही हॅपी संडे म्हणून स्टॅगर्डमध्ये तुम्हाला सुट्टी देतो। तुमच्या मित्र मैत्रिणी, बायको, तुमचेच बायको त्याच्यासोबत पिक्चरला येत जाओ। एनसीपी शरद पवार ग्रुप के शहर सदर ख्वाजा शरफुद्दीन मुल्ला की जानिब से एक तकरीब रेलवे स्टेशन सिल्क मिल्स कॉलोनी इलाके में मौजूद उनके राब्ता ऑफिस पर रखी गई, जहां एनसीपी के कायद रोहित पवार और पार्टी के नौनामजद रियासती सदर शशिकांत शिंदे के हाथों ज़रूरतमंद अफराद में हाथ गाड़ियाँ तकसीम की गईं और होनहार तलबा का मेहमानों के हाथों इस्तकबाल किया गया। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता रोज़ पार्टी के नौ नामज़द रियासती सदर शशिकांत शिंदे और सीनियर कायद रोहित पवार औरंगाबाद आए हुए थे। इस मौके पर पार्टी के शहर सदर ख्वाजा शरफुद्दीन मुल्ला ने शहर के होनहार तलबा के इस्तकबाल और सिल्क मिल्स कॉलोनी के ज़रूरतमंद अफराद को रोज़गार के मौक़े फ़राहम करवाने की गर्ज से एक तकरीब सिल्क मिल्स कॉलोनी इलाके में मौजूद उनके राब्ता ऑफिस पर मुनक़िद की, जहाँ सिल्क मिल्स कॉलोनी के 15 ज़रूरतमंद अफराद में हाथ गाड़ियाँ और कारोबार के लिए दीगर साजो सामान तोहफे में दिया गया। इसी तरह शहर भर के होनहार तलबा जिन्होंने हाल ही में 10वीं 12वीं और दीगर इम्तिहानात में नुमाया कामयाबी हासिल की, उन्हें मोमेंटो और शाल देकर मेहमानों के हाथों उनका इस्तकबाल किया गया। इसके अलावा हर साल शहर के खिलाड़ियों को अपने जौहर दिखाने का मौका फराहम करवाने की गर्ज से क्रिकेट टूर्नामेंट सिल्क मिल्स कॉलोनी में मुनक़िद किया जाता है। इस टूर्नामेंट में जीत दर्ज करवाने वाली टीमों में ट्रॉफीज़ तकसीम की गईं। इस मौके पर एनसीपी शरद पवार ग्रुप के सीनियर कायद इलियास किरमानी, सालिक हसन खान, मेराज पटेल, मसूद अहमद और एनसीपी के दीगर ओहदेदारान व अरकान व सोशल वर्कर्स और इलाके के साकिनान बड़ी तादाद में मौजूद थे। खुल्दाबाद तहसील के गोलेगांव में ज़िला परिषद प्राइमरी व हाई स्कूल के सदर मुदर्रिस विनायक वाद की तकर्री मनसूख करवाने और उन्हें फ़ौरन गोलेगांव के स्कूल में ज्वाइन कराने के मुतालबे पर गांव के स्कूल मैनेजमेंट कमेटी
ग्राम पंचायत अराकीन और आवाम ने 7 अगस्त से ज़िला परिषद दफ्तर के सामने भूख हड़ताल शुरू कर रखी है। एजुकेशन ऑफिसर के मुताबिक केंद्रीय प्रमुख और ग्रुप एजुकेशन ऑफिसर ने मुश्तरका रिपोर्ट में तकर्रुरी से साफ इनकार किया था। गोलेगांव ग्राम पंचायत ने भी यही सिफारिश दी थी, मगर उन सिफारिशात को नज़रअंदाज करते हुए उस वक्त के कायम मकाम चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अशोक शिरसे ने नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जारी करके विनायक वाघ की तीसरी तकर्रुरी शासकीय विद्या निकेतन औरंगाबाद में कर दी। एमएलए प्रशांत बम ने भी मनसूखी का मुतालबा किया, मगर शाम 6 बजे तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। एहतजाजियों का कहना है कि इस फैसले से तलबा की तालीम मुतासिर हो रही है। इससे कबल भी 3 साल पहले ऐसी ही तकर्रुरी पर आवाम को भूख हड़ताल करनी पड़ी थी। भूख हड़ताल में गणेश अड़ाव, उत्तम गायकवाड़, अर्जुन विहारे, कृष्णा पोफले, रवि जाधव समेत दीगर शामिल हैं और तमाम पैरवी गोलेगांव के नायब सरपंच संतोष जोशी कर रहे हैं। एहतजाज करने वालों ने खबरदार किया है कि मुतालबात पूरे न हुए तो तहरीक मजीद सख्त की जाएगी। सेनगांव ताल्लुक़े के आजेगांव इलाके में मूसलाधार बारिश के बाइस आजेगांव की करीबी नदी में ज़बरदस्त सैलाब आया, जिससे कुछ वक्त के लिए ट्रैफिक निज़ाम मुतासिर रहा। गुज़िश्ता रात से आजेगांव ओरबन के अतराफ में मूसलाधार बारिश जारी है, जिसके नतीजे में 8 अगस्त की सुबह तकरीबन 8:30 बजे आजेगांव के करीब नदी में ज़बरदस्त सैलाब आया और ट्रैफिक कुछ देर के लिए बंद रहा। सुबह से मुसलसिल बारिश के बाइस कई मकामात पर दरियाओं, नालों और नदियों में तुग़यानी की इत्तला मिली है। हेवरखेड़ा इलाके में भी मूसलाधार बारिश के बाइस दरिया के किनारे वाक़ई खेतों में लगी फसलों को शदीद नुकसान पहुंचा है। इस वक्त हेवरखेड़ा समेत सेनगांव ताल्लुक़े में मुसलसल बारिश हो रही है और हेवरखेड़ा के करीब नदी में आए सैलाब का पानी खेतों में दाखिल होकर सोयाबीन समेत कई फसलों को बहा ले गया, जिससे किसानों का भारी नुकसान हुआ है। किसानों की जानिब से नुकसानात का मुआयना करके भरपाई का मुतालबा किया गया है। मी माधव पुपाटे, हिवरखेडा, राहणार हिवरखेडा। हे बघा आपल्या शेतातून पूर्ण हे पाणी, नदीचं पाणी पूर्ण आलं आहे शेतामधून। हे बघा हे नुकसान सगळं टोटल हे म्हणजे मातीसहित पूर्ण वाहून गेलं आहे। हे बघा पूर्ण मातीसहित। मी प्रशासनाला विनंती करतो की हे बघा आणि याचा पंचनामा करून शेतकऱ्याला काहीतरी मदत द्यावं अशी माझी कळकळीची विनंती आहे। हे बघा हे पूर्ण असं टोटल हे नदी समधी फुटून असं हे नदी पूर्ण फुटून वर आलं पाणी, हे समजा नदी सिंधू वावरान गेल्या शेताने। ते बघा कसं झालंय बघा। जालना कृषि उत्पन्न बाजार समिति के डायरेक्टर और बीजेपी किसान मोर्चे के ज़िला सदर ज्ञानेश्वर मावली शेजोड़ ने जालना पंचायत समिति के ग्रुप डेवलपमेंट ऑफिसर संदीप पवार पर बदउनवानी और बेज़ाब्तगियों के संगीन इल्ज़ामात आयद करते हुए डिविजनल कमिश्नर औरंगाबाद से सख्त कार्रवाई और तहक़ीक़ात का मुतालबा किया। शेजोड़ के मुताबिक इस बदउनवानी से सरकारी स्कीमों के निफाज पर सवालिया निशान लग गया है और देही आवाम को माली व समाजी नुकसान हो रहा है। शेजोड़ ने इल्ज़ाम लगाया कि रोज़गार हामी योजना के तहत शमशान घाट शेड, स्कूल कंपाउंड वॉल, नालियाँ, लिंक रोड और कुओं के कामों के फंड्स में से 10% कमीशन लिया जाता है। लिंक रोड की मंजूरी के लिए 50,000 और कुएं की मंजूरी के लिए 30,000 रुपये रिश्वत ली जाती है। मज़ीद ये कि मुताद्दिद रिहायशी स्कीमों के मुस्तफ़ीदीन से फ़ीकस 10,000 रुपये रिश्वत लेने की शिकायत मौसूल हुई हैं, जिससे गरीबों का इस्तेसाल और स्कीमों का मकसद मुतासिर हो रहा है। जालना ताल्लुक़ा के कई मुस्तफ़ीदीन और गाँव वालों ने तहरीरी व ज़ुबानी शिकायत दर्ज कराई हैं, जो पवार के इख्तियारात के गलत इस्तेमाल और मिली भगत से बदउनवानी को जाहिर करती हैं। जालना पंचायत समितीचे गट विकास अधिकारी श्री संदीप पवार यांच्या कार्यकाळामध्ये त्यांच्या कार्यालयामध्ये फार मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार बोकाळलेला आहे। रोजगार हमीच्या सिंचन विहिरीच्या लाभधारकाकडून प्रत्येकी 30,000 रुपये, प्रधानमंत्री आवास योजना आणि घरकुलांच्या ज्या इतर योजना आहेत या सर्व योजनेच्या लाभधारकाकडून प्रत्येकी 10,000 रुपयाची वसुली केल्या जात आहे। तसेच रोजगार हमीच्या अंतर्गत पानन रस्त्याची काही कामं आहेत आणि शासनाच्या जे काही योजना आहेत या सर्व योजनेमध्ये फार मोठ्या प्रमाणामध्ये भ्रष्टाचार झालेला आहे। त्यांच्या भ्रष्टाचाराच्या विरुद्ध मी आज जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी PM मिनू मॅडम आणि जिल्हाधिकारी आशिमा मित्तल मॅडम यांना निवेदन दिलेलं आहे आणि उद्या जाऊन विभागीय आयुक्त छत्रपती संभाजीनगर यांना सुद्धा गट विकास अधिकाऱ्यांच्या विरोधात निवेदन देणार आहे आणि राज्याचे मुख्यमंत्री सन्माननीय देवेंद्रजी फडणवीस साहेब, राज्याचे ग्रामविकास मंत्री सन्माननीय जयकुमारजी गोरे साहेब, राज्याचे कृषी मंत्री
माननीय दत्ताजी बर्ने यांच्याकडे लेखी स्वरूपात तक्रार करणार आहे। रक्षाबंधन के मौके पर तालुका पैठन के खादगांव प्राइमरी व हाई स्कूल की जानिब से राखी वर्कशॉप का इनेकाद किया गया, जिसमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और एक पेड़ माँ के नाम जैसे पैगामात को आम किया गया। इस मौके पर स्कूल के तलबा ने मुख्तलिफ रंगीन पेपर से समाजी पैगाम देने वाली राखियाँ तैयार की। उनमें एक पेड़ माँ के नाम, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पानी रोकें पानी बचाएं और हेल्पलाइन नंबर 1098 जैसे पैगामात दर्ज थे। स्कूल की सदर मुदर्रिसा रतनमाला सोमवंशी की रहनुमाई में आर्ट टीचर गणेश गोजर ने तलबा को तरबियत दी। ये तमाम राखियां पुलिस भाइयों को भेजी जाएंगी, जिसका बुनियादी मकसद तलबा की पोशीदा सलाहियतों को उजागर करना और उनमें समाजी जिम्मेदारी का एहसास बेदार करना था, ताकि बचपन ही से उनमें फ़नून लतीफ़ा से मोहब्बत पैदा हो और उनकी फ़नकाराना सलाहियतों को फ़रोग़ मिले। ये बात आर्ट टीचर गणेश गोजरे ने बताई। औरंगाबाद से जलगांव जाने वाली कौमी शाहराह पर अंधारी से औरंगाबाद जाने वाली एम्बुलेंस डिवाइडर से जा टकराई, जिसमें मौजूद मरीज़ की मौत हो गई। यह हादसा गुज़िश्ता जुमेरात को पेश आया। महलूक का नाम श्रीराम शंकर काकड़े बताया जा रहा है। एम्बुलेंस के ड्राइवर समेत 5 लोग जख्मी हो गए हैं। समृद्धि हॉस्पिटल पैरालिसिस व रिसर्च सेंटर अंधारी से पैरालिसिस पेशेंट शंकर काकड़े पर इब्तिदाई इलाज करने के बाद मजीद इलाज के लिए घाटी अस्पताल शिफ्ट कर रहे थे। इस सिलसिले में समृद्धि हॉस्पिटल अंधारी की एम्बुलेंस के ड्राइवर अजीम शेख पेशेंट के केयरटेकर ढेपले अर्जुन, मरीज और उसके 3 लवाहिकीन को लेकर जा रहे थे। जलगांव शाहराह पर अचानक एक भीड़ सामने आ गई, जिसकी वजह से एम्बुलेंस बेकाबू हो गई और गाड़ी ड्राइवर से जा टकराई। लिहाजा पैरालिसिस से मुतासरा मरीज और उनके रिश्तेदार हादसे का शिकार हो गए। इसके बाद मकामी पुलिस ने जाए हादसे पर पहुंचकर मजीद एक एम्बुलेंस मंगवाई और जख्मियों को घाटी अस्पताल भिजवाया, मगर मरीज शंकर काकड़े की तिब्बी जांच के बाद घाटी अस्पताल के डॉक्टरों ने उनकी मौत की तस्दीक कर दी। दीगर जख्मियों का घाटी अस्पताल में इलाज जारी है। इस वाक़े का बरूड बाजार पुलिस थाने में इंदराज किया गया। मजीद तहकीकात एडिशनल पुलिस इंस्पेक्टर सुनील रांगले कर रहे हैं। काल दिनांक 7/8/2025 संध्याकाळी 5:30 वाजता महादेव श्रीराम सोमटकर नावाचा 26 वर्षाचा तरुण, राहणार हा मिर्जापूर, तालुका मालेगाव, जिल्हा वाशिम येथील राहणारा असून हा आपली मोटारसायकल क्रमांक MH 37 AK 9489 ने मोतीबाग ते अंबड चौफुली दरम्यान जात असताना अगदी याच्या समोरच उड्डाणपुलाच्या समोर क्रीडा संकुलाच्या अगदी बाजूला याला पाठीमागून आलेली एक अज्ञात मोटार होती, कार, जिचा नंबर होता MH 48P 9986। याच्या चालकाने हायगाईनी व बेदरकारपणे वाहन चालवून पाठीमागून ठोस दिली। त्याच्यामध्ये तो जबर जखमी झालेला होता। सदरील जखमी इसमास तात्काळ दवाखान्यात नेले असता हा इसम तिथे आहे तर मयत घोषित करण्यात आला। याला त्या अनुषंगाने कदीम जालना पोलीस ठाणे येथे अपघात रजिस्टर नंबर 331/25 अन्वये अपघात रजिस्टर करून गुन्हा दाखल केलेला आहे व सदरील गुन्ह्याचा तपास महिला पोहेका वाघमारे यांच्याकडे देण्यात आलेला आहे। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। अवाम के मसाइल वक्त पर हल करके रिवेन्यू महकमे का किया जाए नाम रोशन। महसूल हफ्ते की इख्तितामी तकरीब में इलाकाई कमिश्नर पापड़कर ने दिया महसूल मुलाजमीन को मशवरा। दीगर आला अफसरान ने भी की हाजिरीन की रहनुमाई। AMC इंतजामिया की जानिब से गुज़िश्ता 2 माह से शहर में जारी इन्हेदामी कार्रवाई पर लगाई जाए फौरी रोक। मुतासरीन की बाज़ाबातकारी करके उन्हें अदा किया जाए मुआवजा। AMC के खिलाफ शहर में निकाला गया जन आक्रोश मोर्चा। डिविजनल कमिश्नरेट को पेश किया गया मुतालबाती मेमोरेंडम। कैश वक्फ फंड से बेवाओं और PhD के ज़रूरतमंद तलबा को वज़ाइफ देने का वक्फ बोर्ड ने किया ऐलान। लाउड स्पीकर की इजाज़त के लिए मसाजिद और दरगाहों को वक्फ बोर्ड जारी करेगा NOCs, कहा चेयरमैन समीर काजी ने। वक्फ बोर्ड के बोगस कारोबार पर भी रोक लगाने का किया दावा। और
NCP शरद पवार ग्रुप के शहर सदर ख्वाजा शरफुद्दीन ने पार्टी के 9 नामजद रियासती सदर के एजाज़ में रखी तकरीब। मेहमानों के हाथों बेरोजगार अफराद में तकसीम की गई हाथ गाड़ियाँ और कारोबार के लिए सामान। शहर के होनहार तलबा का भी किया गया इस्तकबाल। इसी के साथ MCN उर्दू खबरनामा यहीं ख़त्म होता है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं नवीद अंजुम आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।